वेङ्कटपतेर्विष्णो परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्त्यसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम्। ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ. ಅಂಗಂ ಹರೇ ಪುಲಕಭೂಷಣಮಾಶ್ರಯಂತಿ ಭೃಂಗಾಂಗನೇವೆ ಮುಕುಲಾಭರಣಂ ತಮಾಲಂ ಅಂಗೀಕೃತ ಅಖಿಲ ವಿಭೂತಿ ಅಪಾಂಗಲೀಲಾ ಮಾಂಗಲ್ಯದಾಸ್ತು ಮಮ ಮಂಗಳ ದೇವತಾಯ ಮುಕ್ತಾ ಮುಹುರ್ವಿದತಿ ವದನೆ ಮುರಾರೆ ಪ್ರೇಮತ್ರಪಾ ಪ್ರಣಿಹಿತಾನಿ ಕಥಾ ಕಥಾನಿ ಮಾಲಾದೃಶೋ ಮಧುಕರೀವ ಮಹೋದ್ಬಲೇಯ சாமே ஸ்ரீயம் திசத்து சாகர சம்பவாய என்று அந்த ஆதிசங்கரர் அருளிய கனகதார ஸ்தவத்தை இன்று ஆரம்பித்து தாயாருக்கு குறிவிட்டு அவளுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பினை அடியேன் அருணாவாகிய உங்களை வரவேற்கிறேன். பாஞ்சராத்திராகம் விதிமுறைப்படி ஆரம்பமாகும் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் திருச்சானூர் கோவில் உள்ளே இருக்கும் கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த வெள்ளிக்கிழமை மிகவும் விசேஷமான நன்னாள். தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவித்து கொண்டு விசாகா நட்சத்திரம் சஷ்டி திதி வெள்ளிக்கிழமை மிகவும் சிறப்பான நன்னாள். இதோ அந்த தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே முதலில் விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவாஜனம், அதைத் தொடர்ந்து ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. வேதத்திலே ஸ்ரீ மகாலட்சுமி என்றாலே மிகவும் விசேஷமாக அவளை நாம் சேவிக்கலாம். அந்த வேதத்திலிருந்து வெளிப்பட்டதுதான் ஸ்ரீ சூக்தம். பல தேவதைகள் பற்றி பேசாமல் ஏதாவது ஒரு தேவதை பற்றி பேசவே இந்த ஸ்ரீ சூக்தமானது உபயோகப்படுகிறது. இதிலே ஸ்ரீ என்ற லக்ஷ்மியை பற்றி மட்டுமே வர்ணிக்கப்படுவதால் இது ஸ்ரீ சூக்தம் எனப்பட்டது. இது உலக மக்களின் நன்மைக்காக மகான்கள் சிந்தித்த பொழுது ரிக் யஜுர் சாம வேதங்களால் நிரம்பியதும் சப்தம பிரம்மத்தை ஆழ்கடலை கடைந்த பொழுது திவ்யமான சூக்தங்கள் வெண்ணெய் திரண்டு வருவது போல வெளிப்பட்டனவாம். அவற்றிலே ஒன்று புருஷ சூக்தம், இது விஷ்ணுவுக்கு உரியது, மற்றொன்று ஸ்ரீ சூக்தம். அப்படி அந்த மகாலட்சுமிக்கு உரிய இவை வேதகால மகர்ஷிகளால் சேவிக்கப்பட்டு மிகுந்த நல்ல பலன்களை அளித்ததாம். அதனால்தான் அந்த தாயை நாம் ஸ்ரீ சூக்தத்திலே சேவிக்கிறோம். பார்க்கடலிலே இருந்து மகாலட்சுமி தோன்றிய காலத்திலே தேவேந்திரனால் துதிக்கப்பட்ட ஸ்திரீ ஸ்துதி ஒன்று விஷ்ணு புராணத்திலே உள்ளது. இதை பக்தர்கள் சேவிக்கிறார்கள். அதேபோல் அந்த குணரத்ன கோஷத்திலே இதனை பதம் பார்த்து பிரித்தால் ஸ்ரீ ஆகிற மகாலட்சுமியின் குணங்கள் என்னும் மகாரத்னங்களை தன்னுள் பாதுகாத்து வைத்து நவநிதி பெட்டி போல் காத்து கொண்டிருப்பாளாம். அப்படிப்பட்ட தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இப்பொழுது விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவாச்சனத்தை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். ஸ்ரீ என்றால் எல்லாமே ஸ்ரீமயம்தான். லக்ஷ்மி என்று பொருள். ஸ்ரீ என்றால் திரு என்று பொருள். ஸ்ரீ என்றால் செல்வம் என்று பொருள். ஸ்ரீ என்றால் பாக்கியம், அழகு, 16 பேர்கள் என்று பொருள். ஸ்ரீகரம் என்றால் மங்களகரமான பொருள் என்றும், ஸ்ரீகரன் என்றால் லக்ஷ்மி கடாட்சத்துடன் விளங்குபவன் என்று பொருள். ஸ்ரீபதி என்றும், ஸ்ரீகாந்தன் என்றும், திருமால் என்றும் பொருள். ஸ்ரீ கீதை என்றால் பகவத்கீதை என்று பொருள். ஸ்ரீகோசம் என்றால் அது ஒரு புனித நூல். ஸ்ரீமுகம் என்றால் திருமுகம். குருவோ அல்லது அரசனோ எழுதி அனுப்பும் மிக உயர்ந்த லிகிதம் என்று பொருள். ஸ்ரீ சக்கரம் என்றால் அந்த மகாசக்தி குடியிருக்கும் யந்திரம் என்று பொருள். ஸ்ரீ மேரு என்றால் மகாசக்தி குடியிருக்கும் மாமலை என்று பொருள். ஸ்ரீபுரம் ஸ்ரீலக்ஷ்மி குடியிருக்கும் கோயில் என்று பொருள். இப்படியாக ஸ்ரீதேவி என்றால் திருமகள் என்றும், ஸ்ரீமூர்த்தி என்றால் சால கிராமம் என்றும், ஸ்ரீ சூர்ணம் என்றால் திருமண் பாதம் என்றும்,
இடும்பொழுது நடுவிலே ஊர்துவ புன்றமாக மேல் நோக்கி இடும் சிவப்பு அல்லது மஞ்சள் வர்ணத்துக்குரிய புனிதப்பொடி என்றும், ஸ்ரீ துளசி என்றால் திருத்துழா என்றும் கூறப்படுகிறது. அப்படி அந்த ஸ்ரீயானவள் காரிய கண்காணி என்றால் கோவில் அல்லது மடாலய மேல் விசாரணை. அது இவ்வாறாக ஸ்ரீ என்றாலே உலகில் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கான அசையும் சொத்துக்கள், அசையா சொத்துக்கள் என்று பொருள். ஸ்ரீ என்றால் வாழ்விலே நாம் பெறும் சகல செல்வங்களும் என்று பொருள். அப்படிப்பட்ட லக்ஷ்மி தேவியை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் கல்யாண உற்சவத்திலே. आदित्यान् पशुभिः यावा पृथिवे वर्ताभ्याम् विद्युतम् कनेनागाभ्याम् शुक्लाय स्वाहा कृष्णाय स्वाहा पार्याणि पक्ष्माण्यवार्याय क्षवो वार्याणि पक्ष्माणि पार्याय क्षवाः पदम् प्राणेनापानेन नासिके पयाममदारेणोष्टेन सदुत्तरेण काशेनान्तरमणोकाशेन बाह्य निवेष्पम् मूर्ध्वास्तनयत्वान्यर्बाधेन शनिम् मस्तिष्केन विद्युतम् कनेनागाभ्याम् कर्णाभ्याग्श्रोत्राभ्याम् कर्णोते ध्वनिमाधुरकण्ठेन वस्वष्टकण्ठेन चित्तम् मन्याभिः अदेदिग्नासेर्ष्णानिररजन्यर्जर्जल्येन सेर्ष्ण सङ्क्रोशे प्राणान् रेष्मानग्रस्तुपेन मशकान्यशैरिन्द्रग्रस्वपासापहेन बृहस्पतिग्नशकुनिसादेन घोर्मान सफैराक्रमाणग्रस्थोराभ्यामृक्षलाभिः कपिञ्जलोन जलञ्जङ्घाभ्यामध्वानम् बाहुभ्याम् याम् वेलेनारण्यमग्निमतिरुभ्याम् भूषणम् दोर्भ्यामश्विना रुद्रघोराभ्याम् अग्नः पक्षतिर्वायोर्निपक्षतिरिन्द्रस्य तृतीयापाम् चतुर्थे आदित्ये पञ्चमेन्द्राण्ये षष्ठे मरुताग् सप्तमे बृहस्पतिरष्टमे यम्नो नवमे द्वादशमेन्द्रस्यैकादशे वरुणस्य द्वादशे यमस्य त्रयोदशे इन्द्राग्न्योः पक्षते सरस्वते निपक्षतिर्मित्रस्य तृतीया सोमस्य चतुर्थे निररते पञ्चम्यग्ने सोमयो षष्ठे सर्पाणाग् सप्तमे विष्णोरष्टमे ओष्णो नवमे चतुर्दशमे रस्यैकादशे वरुणस्य द्वादशे त्रयोदशे इन्द्राग्न्योः पक्षते सरस्वत्यै निपक्षतिर्मित्रस्य तृतीया सोमस्य चतुर्थे निररते पञ्चम्यग्ने सोमयो षष्ठे सर्पाणाग् सप्तमे विष्णोरष्टमे ओष्णो नवमे त्वष्टदशमेन्द्रस्यैकादशे वरुणस्य द्वादशे यम्ये त्रयोदशे यावा पृथिव्योर्दक्षिणदिशि
दक्षिणम् पार्श्वम् शेषाम् देवानामुत्तरम् मरुताग्रस्कन्धा विश्वेषाम् देवानाम् प्रथमाकेक सा रुद्राणाम् द्वितीया आदित्यानाम् तृतीया वायो पुच्छमग्ने सोमायो भासादो कृञ्चो श्रोणिभ्यामिन्द्रा बृहस्पते उरुभ्याम् मित्रावरुणा अलगाभ्यामाक्रम अग्रस्थोराभ्याम् बलङ्कुष्ठाभ्याम् पूषणम् वनेष्ठुनान् दाहेन् स्थोलगुदया सर्पा मुदाभिः वस्कृता आन्द्रे वृषणमाण्डाभ्याम् वाजिनग्नशपेन प्रजागारतसान् पित्तेन प्रदरान् वायुना गोष्माञ्चगपिण्डैः इन्द्रस्य क्रोलोदित्ये वाजस्यम् दिशा यत्र वोदित्ये भसत् ये मूतान् हृदयोपशेनान्तरिक्षम् पुरे तथा मतस्राभ्याम् दिवम् वृक्काभ्याम् गिरेण राशिभिः बालान् प्लेन्हावल्मेघान् क्लामभिर्क्लौभिः पुल्मान् हिराभिः स्रवन्ति उदान् कुक्षेभ्यः समुद्रमुदरेण वैश्वानरम् भस्मानाम् घृतज्ञारसेनाप योष्णामरे च हारमोष्मणा तेनम् वसया प्रश्वाश्रुभिः प्रादुनेर्दोषे गाभिरष्टारक्षाग्रसे चित्रा यङ्गैर्नक्षत्राणि रूपेण पृथिवीं त्वचाजुम्बकाय स्वाहा वर्तताग्रे बोधस्य जातः पतिरेक आसीत् तदाधार पृथिवीं यामुते माम् तस्मै देवाय हविषा विधेमा द्रप्तानतो निमिषतो माहित्वैक इद्राजा गतो बभूव ईश अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेमा हिमवन्दो महेद्वा यस्य समुद्रगसया स आहुः यस्य प्रदिशो यस्य बाहो कस्मै देवाय हविषा विधेमा य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषय्यस्य देवाः यस्य छायामृतयस्य मृत्य कस्मै देवाय हविषा विधेमा आनो भद्राकृतवोऽयन्त विश्वतो दब्धासो अपरेतास उद्भिदाः देवानो यथा सदमृद्धे सन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानाम् भद्रासो मतर्रजो यताम् देवानाग्रातिरभिनो निवर्तताम् देवानाग्सख्यमुपसेति मा भयम् देवानाय प्रतिरन्तो जेवसे
पूर्वयानि विदाहोमहे वयं भगं मित्रमदेदं दक्ष अश्रुध्वम् आर्यमणं वरो नग्न सोमामश्विना सरस्वतेन स्वभगामयस्करद सोमयो भवादो भेषजन्दन्माता पृथिवे तत्पिताद्यो तद्रावाण स्वामसुतो मयो भव तदश्विना शृणुतां धिष्ण्या युवाम् तमीशानं जगतस्तस्तुषस्पति ध्ययञ्जन्वमवसे होमहे वयम् पोषाणो यथा वेदसामसदृधे रक्षिता वायुरदब्धस्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ऋषदश्वा मरुतः प्रश्ने मातरस्वभञ्यावानो विदधेषु जग्मायः अग्निजिह्वामनवस्वरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः देवा भद्रं पश्य माक्षभयजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तोष्टवाग्सस्तनोभिर्व्यासेम देवहेदं यदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ते देवा यत्रा नश्चक्र यरसन्दनोणाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारेर्षतायोर्गन्तोः अदेतिर्द्यौरदेतिरन्तरिक्षमदेतिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदेतिः पञ्चजना अदेतिर्जातमदेतिर्जनित्वम् मानो मित्रो वरुणो मामयरेन्द्रभुक्षामरुतः पर्घ्यन् यद्वाजिनो देवजातस्य सप्ते प्रवक्ष्यामो विदधे वीर्याणि यन्निर्निजारक्णसा प्रावृतस्य रात गृभेतां मोक्षतो नयन्ति स्वप्राः गजो मेऽम्यद्विश्वरो भयेन्द्रापोष्णो प्रियमप्येति पाथः येषच्छागः पुरो अश्वेन वाजिना पोष्णो भागो नीयते विश्वदेव्यः अभिप्रयं यत्पुरोलाशमर्वदा त्वष्टेदेनग्नसौश्रवशाय जिन्वते यद्धविष्यमृदुषो देवयानन्तर्माणोषा पर्यस्पन्नयन्ति अत्रापोष्णप्रथमो भागयेति यज्ञ देवेभ्यः प्रतिवेदयन्नजः होदाध्वर्योरावय अग्निमेन्धोग्रावग्राभ उतशग्नस्तासु विप्रः तेन यज्ञेन स्वरं कृतेन स्वेष्टेन वक्षणा आपृणध्वम् योपौरस्का उदये योपवाह चशालं ये अश्वयोपाय तक्षते
ये चार्वते पचनग् सम्भरन्त्युतो देशामभिगोर्तिर्नयन्वतो अप्रागात् स्वमन्मेधायिमन्मदेवानामासा उपावेदपृष्टः अन्वेनं विप्रऋषाय मदन्ति देवानां पुष्टे जागृमासु बन्धुम् यद्वाजिनादामसन्दानमर्वातो यासेर्षण्यारषणारज्जोरस्य यद्वाघास्य प्रभृतमास्य तते अपि देवेष्वस्तो यदस्वस्य क्रविशो मक्षिकाशयद्वा स्वरो स्वदेतौ रिप्तमस्ति यद्धस्तयो शमितुर्यन्नखेषु सर्वादाते अपि देवेष्वस्तु यदोवद्यमुदरस्यापवाति य ओमस्य क्रविशो गन्धो अस्ति सुकृतादच्छामितारक्रण्वन्तो तमेधग् श्रुतपाकम् भजन्तो यद्धे गात्रादग्निना पच्यमान दभिषोलन्निहतस्यावधावते मा तद्भूम्यामाश्लेषन्मातृणेषु दिवेभ्यस्तदोषद्भ्यो रातमस्तु ये वाजिनम् परिपश्यन्ति पक्वये माहुस्सुरभिर्निर्हरति ये चार्वतो माग्सभिक्षमुपासाद उतो देशामभिगोर्तिर्नयन्वतो यन्नेक्षणम् माग्स्पचन्या उखाया पात्राणि योष्ण असेचनानि ओष्मन्या पिधानाचरोणामङ्का शोणा परे भोषन्त्यश्वम् मा त्वाग्निर्ध्वानयद्धोमगन्धर्मोघा भ्राजन्त्यभिविक्तजघ्रेः इष्टम् वेदमभिगोर्तम् वषट्कृतम् तम् देवास प्रतिगृह्णन्त्यश्वम् निक्रमणम् निषदनम् विवर्तनं यच्च पड्वेश यच्च पपो यच्च घासिन् जगास सर्वादाते पे देवेष्वस्तो यदस्वायवास उपस्तृणन्त्य देवासंयरण्यान्यस्मै सन्दानमर्वन्दम् पड्वेषम् प्रिया देवेष्वायामयन्ते इमानुकम् भुवनाशेषधामेन्द्रश्च विश्वे च देवाः आदित्यैरेन्द्रः सगणो मरुद्भिरश्मभ्यम् विषजाकरत् यज्ञम् च नस्तन्वम् च प्रजाम् च आदित्यैरेन्द्रः सहशेषधाते अग्ने त्वन्नो अन्दाम उत त्राता शिवो भावावरोध्याः वसोरग्निर्वदोश्रवा अच्छानक्ष्य विमत्तामग्रयन्दाः त्वन्तासो ज्येष्ठदे दिव सुम्नाय नो न मे महे सखेभ्यः
पृथिवी च शुन्नादेते मे सन्नामदा मदो वायुश्चान्तरिक्षं च सन्नादेते मे सन्नामदा मद आदित्यश्च द्यौश्च देते मे सन्नामदा मद आपश्च वरुणश्च सन्नादेते मे सन्नामदा मदः सप्तसर्गा सदो अष्टमे भूतसाधने सका मा अध्वनस्वरसं ज्ञानमस्तु हेमुना कथे मां वाजं कल्याणे मा वदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याज्ञ शूद्राय प्रियो देवानां दक्षिणाये दातुरिह भूयासमयं मे काम समृद्ध्यतामुपमादो नामतो बृहस्पते अधियदर्यो अर्हद्युमद्युभाते क्रतो मज्जनेषु यद्वेद यच्छवसरत प्रजाददस्मासु द्रवीणं देहि चित्रम् उपयामगृहीतो बृहस्पतये त्वैषते यो निर्बृहस्पतये त्वा इन्द्रगोमन्निहाय हि पिबा सोमज्ञशतक्रतो विद्याद्भिर्ग्रावभिः सुतम् ஓம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி நமஹ. பத்மாவதி தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இப்பொழுது சேவித்துக் கொண்டிருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. அந்த மாங்கல்யங்களை சுத்த க்ஷீரம், அதாவது பாலால் அலம்பி அதன் பிறகு சந்தனம் மற்றும் மஞ்சள் குங்குமம் ஆகியவற்றால் பூஜை செய்கிறார்கள். இதோ அந்த மாங்கல்யங்களை நாமும் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். மகாலட்சுமி தேவியின் சில தாமரை பெயர்களும் அதனுடைய பொருள்களும் அவளுக்கு எப்படி பொருந்தும் என்று பார்த்தால், பத்மமுகி என்றால் தாமரை திருமுகம் கொண்டவள், பத்மஹஸ்தே தாமரை மலர்களை கரங்களிலே ஏந்தினவள், பத்மினி நால்வகை பெண்களின் உத்தமமான தாமரை மலர் வடிவமான அழகிய பெண், பத்மகந்தினி தாமரை மலர் வாசம் வீசும் தேவி, பத்மாலாதரா தாமரை மலர் மாலை அணிந்தவள், பத்மதளாய தாக்ஷி தாமரையின் இதழ்களைப் போல நீண்ட கண்களை கொண்டவள், அரவிந்தாக்ஷி அரவிந்த லோச்சனி தாமரை கண்ணி, பத்மப்ரியா தாமரை மலரின் மீது விருப்பம் உடையவள், பத்மாசனி தாமரை பூவிலே அமர்ந்தவள் அல்லது தாமரை பூ போல யோகாசனம் கொண்டவள், பத்மாலயா தாமரை பூவையே தம் இருப்பிடமாக கொண்டிருப்பவள், பத்மா கமலா அம்புஜா பங்கஜா என்று தாமரை மலர் போன்றவள். இவ்வாறாக இவள் பலவேறு இடங்களில் மகான்கள் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியை தாமரை மலரோடு சம்பந்தப்படுத்தி புகழ்வதிலிருந்தே செந்தாமரை மலர் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி வழிபாட்டிற்கு எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை பக்த கோடிகள் நன்கு உணர வேண்டும். அதாவது செந்தாமரை மலரால் மற்றும் வெண்தாமரை புஷ்பங்களாலும் மகாலட்சுமியை சேவிப்போம், செல்வ வளங்கள் யாவும் பெற்று மகிழ்வோம். அப்படிப்பட்ட அந்த தாமரை புஷ்பத்திலே பத்ம சரோவரத்திலே அவிர்பவித்த அந்த பத்மாவதி தாயாருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ மாங்கல்ய பூஜையை தொடர்ந்து மாங்கல்ய தாரணத்தை நாம் சேவிக்க இருக்கிறோம். அந்த மாங்கல்யங்களுக்கு அர்ச்சக சுவாமி பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார். வேதத்திலே மகாலட்சுமி ஸ்ரீ சூக்தமாக வெளிப்படுகிறது. அப்படி ஸ்ரீ சூக்தம் என்பது பல பல தேவதைகளை, அதாவது
பார்க்கடலிலே ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தோன்றிய காலத்திலே தேவேந்திரனால் துதிக்கப்பட்ட ஸ்ரீ ஸ்துதி ஒன்று விஷ்ணு புராணத்திலே உள்ளது. அதனை அந்த பக்தர்கள் சேவிக்கிறார்கள். அதேபோல் அந்த தாயாரானவள் 16 இடங்களிலும் மேலும் சதுஸ்லோகியிலே அந்த தாயாருக்கு முக்கியமான இடத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள். இதனை யமுனாச்சாரியார் என்ற ஆளவந்தாரில் அருளி செய்திருக்கிறார். பழங்கால விஷ்ணு கிரந்தங்களுள் மிகவும் முக்கியமானதாக கருதப்படும் இந்த சதுஸ்லோகியிலே கனகதார ஸ்தவமும் ஒன்று. அப்படி அந்த ஆதி சங்கர பகவத்பாதர் கனகதார ஸ்தவத்தை ஏற்றி அந்த தாயாரின் முன்னே நின்று அந்த ஸ்லோகத்தை பாடுகிறார். இப்படி வேதத்தின் பாகமான ஸ்ரீ சூக்தத்திலே அவள் போற்றப்படுகிறாள். இதோ மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா, ஓம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி நமஹா, ஓம் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி நமஹா என்று தாயாரை செவிக்கலாம். பத்மாவதி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த ஸ்ரீனிவாசருடைய அதாவது திருமணம் செய்து கொண்ட இதற்கு நினைவாக இதோ மாங்கல்ய தாரணமும் முடிவு பெற்றது. அந்த தாயாருக்கு மங்கள நீராஜனத்தை சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. சர்வ மங்கள மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்தி சாதிக்கே சரண்யே திரியம்பிகே தேவி நாராயணி நமோஸ்துதே என்று தாயாரை நாம் சேவிக்கலாம். மங்கள நீராஜனத்தை சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஸ்ரீயக்காந்தாய கல்யாண நிதையே நிதையர்த்தினாம் ஸ்ரீ வெங்கட நிவாசாய ஸ்ரீனிவாசாய மங்களம் என்று ஸ்ரீனிவாசனுக்கு முதலில் மங்கள நீராஜனத்தையும் அதைத் தொடர்ந்து தாயாருக்கு மங்கள நீராஜனத்தையும் சமர்ப்பிக்கிறார். சர்வ மங்கள மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்தி சாதி. क्रतो मज्जनेषु यद्धेतयच्छवाधरत प्रजा तदस्मासु द्रवेणम् पयामरेहेतोऽसि बृहस्पताय त्वेषते योनिर्बृहस्पताय त्वा इन्द्रगोमन्निहायायभिभासो मग्गसदक्रतो विद्यद्भिर्ग्रावा विश्रुताम् पयामरेहेतोऽचेन्द्राय त्वा गोमातये षते योनिरिन्द्राय त्वा गोमाते ऋतावारं वयेश्वरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम् अजस्सङ्घर्ममे महे पयामरेहेतोऽचेन्द्राय त्वा वैश्वानराय त्वेषते योनिर्वैश्वानराय त्वा वैश्वानरग्रः वामहृतस्य ज्योतिषस्पतिम् अजस्सङ्घर्ममे महे उपयामरेहेतोऽसि वैश्वानराय त्वेषते योनिर्वैश्वानराय त्वा
वैश्वानरो न ऊतय प्रजातु परावतः अग्निरुद्धेरवाहत उपयामर्हितो वैश्वानरायत्वैषतेजोर वैश्वानरायत्वा वैश्वानरस्य सुमतोऽस्यामराजाहिकं भुवनानामभिश्रीः इतो जातो विश्वामिदं विदष्टे वैश्वानरो तते सूर्येण पयामर्हितो वैश्वानरायत्वेषतेजोर वैश्वानरायत्वा मरुत्वा इन्द्रवृषभोरनाय पिपासो मनुष्वदं मदाय आसिञ्जस्व जठरे मध्वा ऊर्मिं दुग्गराजिप्रतिपत्सुतानाम् पयामर्हितोऽसीन्द्रायत्वा मरुत्वा तयेष तेजो निरिन्द्रायत्वा मरुत्वा ते पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेवाय विद्महे विष्णुभद्राय धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा देवाय भूषण
శిరసు పాగ పెళ్లి కొడుకు గుంపించిన కోపగించి పెళ్లి కొడుకు పెంచకప్పుడే పెరిగే పెళ్లి కొడుకు పెంచకప్పుడే పెరిగే పెళ్లి కొడుకు వలపించే చక్కని సిరి పెళ్లి కొడుకు వలపించే చక్కని సిరి పెళ్లి కొడుకు పెట్టని కోటిందరికి పెళ్లి కొడుకు బొమ్మ పెట్టే నసురులకెల్లా పెళ్లి కొడుకు పెట్టని కోటిందరికి పెళ్లి కొడుకు బొమ్మ పెట్టే నసురులకెల్లా పెళ్లి కొడుకు ఇంటి పెరుగులా దొంగ పెళ్లి కొడుకు భూమి పెంటి పోతులా ఊరిచి పెళ్లి కొడుకు ఇంటి పెరుగులా దొంగ
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ